بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو AS ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے افسانہ کوہ نور اور رائٹر کا نام ہے ماہا خان بیٹنی۔ شام کی سیاہی ہر سو پھیلنے لگی تو تھکی ہاری وہ گھر میں داخل ہوئی۔ بدرنگ لباس، پرانی چادر، چہرے پر صدیوں کی تھکن اس کے حالات کا پتہ دیتے تھے۔ السلام علیکم۔ پرانا سستا سا پرس چارپائی پر ڈال کر تھکا تھکا سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بہن کے لیے پانی لاؤ نیلم۔ اماں نے جواب دینے کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کو مخاطب کیا، یہ لے آپی پانی۔ نیلم نے پانی کا گلاس اس کو تھمایا اور خود دھپ سے ساتھ بیٹھ گئی۔ زہیب آیا نہیں ابھی تک؟ اس نے بھائی کی بابت استفسار کیا جو آج جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا تھا۔ آ گیا تھا، اماں نے دھیرے سے جواب دیا۔ پھر؟ حالانکہ خاموشی نے جواب دے دیا تھا، پھر بھی کسی موہوم سی امید سے پوچھا، پھر کیا آپی؟ اس پرچی سسٹم میں ہم جیسے غریبوں کو کون پوچھے گا؟ نیلم نے تلخی سے کہا تو زینب نے گہری سانس لی۔ کتنی دفعہ کہا ہے نیلم، مایوسی کی باتیں مت کیا کرو، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر کرے گا۔ مانا کہ بہت سی جگہوں میں پرچی سسٹم ہے، لیکن اب اتنی بھی اندھیر نہیں مچی ہوئی۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ بہتر کرنے والا ہے۔ امی نے ہمیشہ کی طرح امید کا دیا پکڑانا چاہا تو زینب نے ایک تلخ مسکراہٹ امی کی طرف اچھالی اور اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ سب ان دلاسوں سے اوب گئے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر پلنگ کی پائنتی پر گر کر وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ بابا، آپ کیوں چلے گئے بابا؟ دیکھیے آپ کی زینی کتنی تھک چکی ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے بابا۔ تصور میں باپ کو مخاطب کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھیے ہم کتنے اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے ہمارا، آپ کی زینی ٹوٹ چکی ہے، اللہ نے آپ کو ہم سے کیوں لے لیا؟ کیوں بابا؟ ہمارے پاس اور تھا ہی کیا؟ دن بھر کا غبار آنسوؤں میں بہا کر وہ واش روم کی طرف جانے لگی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی مگر یہ اب اس کا معمول بن چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے سکھ کے لمحے نہیں دیکھے تھے۔ کچھ سال پہلے تک جب بابا زندہ تھے تو ان کی زندگی بھی بے فکری کے جہاز میں ہنڈولے کھا رہی تھی۔ زندگی اگر بہت بہترین نہیں تھی تو پھر بھی بہت اچھی خاصی تھی۔ وہ سب 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ زینب سب میں بڑی تھی۔ بابا ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھے۔ اچھے وقتوں میں یہ ذاتی مکان بنایا تھا، اس کے علاوہ ایک دکان تھی جس کا کرایہ آتا تھا۔ وہ ان دنوں BS زوالوجی کے آخری سیمسٹر میں تھی۔ امی اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے چکروں میں تھی۔ سفید پوش گھرانوں میں رشتے ویسے بھی مشکل سے میسر آتے ہیں، لہٰذا جو چند رشتے تھے امی ان پر غور و فکر میں مصروف تھیں اور وہ مزید آگے پڑھنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ وہ MPhil کے سپنے سجائے بیٹھی تھی اور امی ہر صورت اس کے سپنوں کو ملیا میٹ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ زہیب FSC کے فائنل ایئر میں تھا، باقی سب ابھی اسکول میں تھے۔ وہ سب ذہین تھے اور محنتی بھی، لیکن وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب کے خواب تلپٹ ہو گئے۔ ایک حادثے میں بابا کی موت ہو گئی اور یہاں سے ان کا کڑا وقت شروع ہوا۔ امی تو بابا کے بعد کبھی ٹھیک ہی نہ ہو سکیں۔ جوڑوں کے درد، شوگر اور بلڈ پریشر نے ان کو ادمواں کر دیا، مگر جانے کیسا صبر تھا ان میں کہ کبھی اف تک نہ کیا انہوں نے۔ امی کی بیماری، چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائیاں، گھر کا خرچ اب محض دکان کے کرائے سے پورے کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے BSc کے فوراً بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لی، مگر مہنگائی کے اس دور میں اس کی تنخواہ سے اخراجات پورے کرنا دیوانے کا خواب تھا، لہٰذا اس نے اسکول کے بعد 3 جگہوں میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ صبح منہ اندھیرے گھر سے نکل کر شام گئے جب تھکی ہاری گھر آتی تو خدا سے بے شمار شکوے پلو سے باندھ کے آتی۔ شروع میں وہ بڑے دل جمعی سے دعا مانگتی، نفل پڑھتی اور تلاوت کا بھی اہتمام کرتی، مگر پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے تو اس کا ایمان بھی ڈگمگانے لگا کہ کون سا اللہ نے 5 سالوں میں میری دعائیں قبول کی۔ سب رائیگاں چلی گئیں اور دھیرے دھیرے وقت کی کمی اور تھکن کو بنیاد بنا کر وہ اللہ سے بہت دور چلی گئی۔ زہیب MSc سے پچھلے سال فارغ ہوا اور تب سے اب تک جاب کے لیے دھکے کھا رہا تھا جو مل کے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بعد عائشہ گورنمنٹ کالج سے FSC کے ساتھ محلے کے بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی اور گھر میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ باقی 2 ابھی چھوٹے تھے اور اسکول میں تھے۔ امی ہر وقت ان کو صبر کی تلقین کرتی، مگر وہ بہت تلخ ہو چکی تھی اور ان باتوں سے بیزار وہ اب صبر اور تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا
जब उसे अपने पैरों के पास एक हेवला नजर आया जो धीरे से उसके बेड के पाइंती पर टिक गया। बाबा, सरसराती आवाज उसके लबों से अदा हुई। बाबा धीरे से मुस्कुराए और उसकी आंखें लबालब पानियों से भर गईं। क्या हुआ बच्चे? उन्होंने उसके आंसुओं की तरफ इशारा किया। बाबा, मेरा दिल टिप टिप आंसू गिरेबान में जज्ब होने लगे। टूट गया है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। टूटेगा नहीं तो उसमें लगा जंग क़यामत तक ना उतरेगा। टूटेगा तभी तो रोशनी दाखिल होगी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। वो नफी में सर हिलाने लगी। बहुत तकलीफ होती है बाबा, बहुत। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। तो तकलीफें तो बहुत प्यारी होती हैं, ये आपको अल्लाह से जोड़ने आती हैं। जिस शिद्दत से दर्द में अल्लाह को पुकारा जाए, सुख के लम्हों में ये बेसाख्तगी कहाँ? वो धीरे धीरे बोल रहे थे जैसे वो हमेशा बोलते थे। मैं नहीं पुकारती अब, वो रूठ के बताने लगी। क्यों? वो मुस्कुराए जैसे सब जानते हो। वो जवाब नहीं देता, वो नहीं सुनता। उसका दिल किया चीख चीख के रोना शुरू कर दे। वो इतना दूर तो नहीं कि सुन ना सके, जवाब न दे सके। तुमने अल्लाह से अच्छा गुमान ही ना रखा होगा और उसका कुन तो आपके गुमान से बंधा है। वो जोर जोर से सर नफी में हिलाने लगी। नहीं बाबा, मैंने हमेशा अच्छा गुमान रखा। मैंने हर दुआ पूरे यकीन से मांगी। मैंने बहुत शिद्दतों से अल्लाह को पुकारा, लेकिन वो मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, तुमने अच्छा गुमान रखा था, मगर तुम्हें खुद पर यकीन था। तुम्हें लगा था कि तुम ज़हीन हो, मेहनती हो, पढ़ी लिखी हो, सब ठीक कर लोगी। आंसू साकित हुए। तुमने दुआ मांगी थी और यकीन भी रखा होगा, और दुआएं तो सबकी कबूल होती हैं। यकीन ना भी रखो तब भी जो अल्लाह से मांग ले वो नवाजा जाता है, मगर तब दुआ किसी भी सूरत में कबूल की जाती है। कोई नया दुख दुआएं टाल देता है, कुछ और अता कर दिया जाता है, कभी आखिरत के लिए संभाल के रख ली जाती हैं। दुआ कभी रद्द नहीं होती, लेकिन दुआ का मनपसंद नतीजा उनको मिलता है जो अल्लाह के पसंदीदा होते हैं। और पता है अल्लाह के पसंदीदा कौन होते हैं? वो साकित आंखों से बाबा के हिलते लब देख रही थी। खामोशी का ये कलील वक्फा भी उसे बेचैन कर रहा था। अल्लाह के पसंदीदा लोग वो होते हैं जो दुआ के लिए मुशक्कत करते हैं, जो उठते बैठते दुआ मांगने के साथ दुआ का एहतमाम भी करते हैं। तहज्जुद ऐसे तो नहीं, अल्लाह की पसंदीदा इबादत, रोजा नफल तलावत से अल्लाह को मनाने की कोशिश जो करते हैं, अल्लाह से ताल्लुक बनाते हैं। हर शख्स की जिंदगी में एक ऐसा शख्स होता है ना, जो हर दुख हर बात उसे बताई जाए। कोई दोस्त, कोई बहन भाई, माँ, या कोई भी आपकी जिंदगी में भी है ना, जो बात किसी को नहीं बताती वो आप अपनी दोस्त से शेयर करती हैं। हर बात, हर दुख वो कुछ ना भी कहें, सिर्फ सुन लें तो हमारे दिल में उनका एक अलग मुकाम होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें सुनता है। तो ये हक तो मेरे अल्लाह का है कि उसे हर दुख सुनाया जाए। वो सुनेगा भी और जवाब भी देगा। तुमने ये हक उसे दिया ही कब है? ऐसा नहीं है बाबा, मैंने अल्लाह को बताया था हर गम, मगर वो मिनमिनाई। मगर अल्लाह नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि फौरन तुम्हारे सारे गम दूर नहीं हुए। वो तो आपकी दोस्त ने भी नहीं किए, आप फिर भी उन्हें बताती हैं। तो अल्लाह के मामले में इतनी बेसब्री क्यों? अल्लाह से ताल्लुक इतना कमजोर क्यों कि फौरन जवाब न आने पर टूट जाए? वो दिन में 5 दफा आवाज देता है और तुम ऐसी गूंगी बहरी कि कभी मुड़ के नहीं देखा। हजरत मूसा के सामने समंदर था, वो जानते थे, मगर वो नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका रब रास्ते बना देगा। उनके दिल में एक दफा भी ये शक ना गुजरा होगा कि अगर रास्ते ना बने तो मेरा क्या होगा। ये उनका अपने रब पर तवक्कल ही था कि समंदर में रास्ते बनते गए। तो क्या तुम्हारा रब मूसा के रब से अलग है? कमरे में अब उसकी हिचकियां गूंज रही थीं। ये जो कलाम है अल्लाह का, ये ऊंचे तख्तों पे सजाने के लिए है क्या? क्या तुमने इस पर गौर किया है? गौर व फिक्र किया होता तो मालूम होता कि कुरान में एक भी स्टोरी होपलेस नहीं है। कुरान में तमाम स्टोरीज का हैप्पी एंडिंग है। अल्लाह से मांगने वालों की और अल्लाह पर तवक्कल करने वालों की एंडिंग कभी सैड हो ही नहीं सकती। यही तो कुरान हमें सिखाता है। मगर बाबा, वो अल्लाह के पैगंबर थे, उनके लिए मोजज़े होते थे और हम तो आम से लोग हैं। उसने रोते रोते सर उठाया। लेकिन कुरान तो हम आम लोगों के लिए है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। फिर अल्लाह हमें ये कहानियाँ क्यों सुना रहा है? क्योंकि ये मोजज़े हम सबके साथ हो सकते हैं, बशर्ते कि हमारा भी अल्लाह पर ऐसा तवक्कल होना चाहिए। वो पैगंबर थे, लेकिन क्या उनकी दुआएं फौरन कबूल की गई थी? उनको आजमाइशों से नहीं गुजारा गया? क्या उनको इंतजार नहीं करना पड़ा?
आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से एक ट्रीटमेंट है। ये आपको ठीक करने आती है, आपको जोड़ने आती है, और जोड़ने का अमल हमेशा तकलीफ दे होता है। आपको याद है जब एक दफा आप छोटी थी और आपके माथे पर गहरा जख्म लग गया था, डॉक्टर ने आपको टांके लगाए थे और टांकों की तकलीफ बहुत ज्यादा थी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो डॉक्टर आपको तकलीफ देना चाहता था। वो आपको एक बड़ी तकलीफ से बचाना चाहता था। वो आपके जख्म को नासूर बनने से बचाना चाहता था। वो आपके कट को जोड़ना चाहता था। इसलिए आपको एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए एक छोटे तकलीफ से गुजरना पड़ा, जो कि आपके लिए बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था कि अगर ये अमल ना हुआ होता तो एक बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा आपको। मगर आपका डॉक्टर जानता था आपकी रूह भी कहीं ना कहीं बीमार थी, इसलिए आपको इलाज की जरूरत थी। लेकिन ये अब आप पर मुनहसिर है कि आपने ठीक होना है या नहीं। लेकिन बाबा, मैंने बहुत बीमार रूहें देखी हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके दिल में अभी भी कहीं फांस फंसी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कभी ठीक होने की ख्वाहिश ही नहीं की होगी। आपने कभी हिदायत की चाह की होगी, और उन्हें हिदायत मिलती है जो इसकी चाह करते हैं। ये जो टूटे हुए दिल होते हैं ना बच्चे, ये बहुत कीमती होते हैं। उन्हें अल्लाह की रजा से जोड़ोगे तो ये कोहे नूर बन जाएगा, वरना सब खाक। हय्या लल फलाह, आओ फलाह की तरफ। फिजा में अजान की आवाज गूंज रही थी। वो अचानक उठ के बैठ गई। पसीने में शराबोर, कमरे में घुप अंधेरा, घू घू करता हुआ पंखा। उसने अंधेरे में यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की, मगर बाबा कहीं नहीं थे। क्या ये ख्वाब था? उसने इधर उधर अंधेरे में बाबा को खोजना चाहा, फिर गहरी सांस लेकर पलंग से उतरी, दुपट्टा उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पहले अच्छे से वुजू किया, फिर जाए नमाज बिछाई। अचानक से उसे तमाम सवालों के जवाब मिल गए थे। नमाज से फारिग होने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो हाथ कांपने लगे, जुबान से सिर्फ सिसकियां निकलने लगी। आंसुओं ने पलकों के बंद तोड़े तो पूरा वजूद धीरे धीरे हिलने लगा और कमरे में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी, और सिसकियों के बीच में हल्की सी आवाज उभरी, अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह। अम्मी जो वुजू करने बाहर आई थी, रोने की आवाज सुनकर जल्दी से उसके कमरे की तरफ लपकी। उसको जाए नमाज पे इस हाल में बैठे देखा तो मुस्कुरा दी। भटके हुए को उसी के पास आना था, यही रोने की असल जगह थी। वो मुतमईन सी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तिलावत से फारिग होकर अम्मी किचन की तरफ आ गई। वो वहाँ पहले से मौजूद थी, जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। एक तरफ चाय, दूसरी तरफ पराठे बन रहे थे। उसकी फुर्ती और पराठों की हालत देखकर अम्मी को हंसी आ गई। उसने भी फौरन पकड़ लिया। हाँ हाँ, हंस लें, माना के थोड़े जले हुए हैं, मगर इतने बुरे भी नहीं हैं। उसने मुंह बनाया। बस थोड़े, अम्मी ने उसी के अंदाज में कहा। वो भी अम्मी की शरारत समझ गई तो जुबान दांतों तले दबाई। आज इसी से गुजारा करना पड़ेगा आप लोगों को। उसने कंधे उचकाए। क्यों भाई, आज स्कूल नहीं जाना? अम्मी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद एक तरफ बैठ गई। नहीं, मैडम को मैसेज कर दिया, कुछ काम है आज वो करने हैं। उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। अच्छा। अम्मी ने ज्यादा कुरेदा नहीं कि वो खुद ही बताएगी। उसने जल्दी जल्दी बरामदे में चटाई बिछाई, चाय और पराठे रखे, फिर सबको आवाज लगाई, नाश्ता रेडी है, सब जल्दी आ जाओ। एक एक करके सब आए और हैरानी से उसे देखने लगे, मगर बोला कोई कुछ नहीं। आज वो बदली बदली लग रही थी और सबको ये तब्दीली अच्छी लगी थी। मैं आज गफ्फार चचा की तरफ जाऊंगी ताकि वो हमारी दुकान खाली कर दे। जब सब नाश्ता करने लगे तो उसने धीरे से बिल्ली थैले से निकाली। सबने हैरानी से उसे देखा। सबको हैरत हुई थी, क्योंकि दुकान के किराए से घर के अच्छे खासे अखराजात चलते थे। क्यों बेटे, गफ्फार भाई अच्छे किराएदार हैं, वक्त पे तो किराया देते हैं। अम्मी ने हैरानी से पूछा। वो जानती थी कि ज़ैनब के दिमाग में कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल अम्मी, लेकिन अब हमें खुद दुकान की जरूरत है। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। नाश्ते से सबने हाथ रोक लिया तो उसने भी चाय परे रख दी और बात शुरू की। वो दुकान में अब हम जुहेब के लिए सामान डलवाएंगे ताकि वो अपना कुछ काम कर सके। उसने सबकी तरफ देखा और साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा। जब जॉब मिले बेशक दुकान छोड़ दे। उसने जुहेब की तरफ देखा, जिसने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो खुद भी थक चुका था बेरोजगारी से। कुछ भी हो, बस काम मिल जाए। वो सब ठीक है, मगर सामान कहाँ से आएगा? अम्मी असल बात की तरफ आई। वो जो सेटअप ने मेरे लिए बनाया था उसे बेचकर वो सब सोचे बैठी थी। अम्मी के गले में कुछ अटक सा गया। ज़ैनी, वो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी के लिए बनाया था। अम्मी आप दीदा हो गईं। ये माएं भी ना हर बात पर जज्बाती हो जाती हैं, क्योंकि तब बाबा को वही बेहतर लगा था, लेकिन आज यही बेहतर है। अम्मी, जाने वालों से ज्यादा रह जाने वाले अहम होते हैं। और वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे एमफिल भी करना है।
اس نے امی کے ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسا دیا تو امی نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ باقی سب بھی امی سے لپٹ گئے۔ اے بس میرا سانس بند کر دیا۔ زینی نے سب کو جھڑک دیا تو سب نے منہ بنا لیا اور ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کر دی۔ امی مسکرا کر ان سب کو دیکھنے لگیں اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ بہت ٹائم بعد وہ سب اپنی جون میں لوٹ آئے تھے۔ زینی نے سب کے دل میں پھر سے امید جگائی، لیکن ایک ہی رات میں زینی کو آخر ہوا کیا جو اتنا بدل گئی؟ امی نے سوچا، پھر سر جھٹک دیا، اللہ جانے۔ ڈیئر لسنرز، یہ تھا شارٹ افسانہ کوہ نور۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے لائک بٹن کو پریس کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔